I'm thankful that I could join with all of you for today's Bible study. मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज मैं आप सबके साथ जुड़ पाया। We saw in the first book of John, first book of John is describing God as God is light, God is love, and God is life. और पहला यूहन्ना में परमेश्वर को प्रकाश के रूप में, प्रेम के रूप में और जीवन के रूप में दर्शाया गया है। In the first chapter, we see in 1 John chapter 1 verse 5, God is light. और पहला यूहन्ना के पहले अध्याय का 5वें वचन में बताया गया है कि परमेश्वर ज्योति है। So we have to walk in the light. इसीलिए हमें भी ज्योति में चलना जरूरी है। To walk in the light means walk in truth, walk in sincerity, and walk being cleansed by the blood of Jesus. तो ज्योति में चलने का मतलब है कि हम अपने आप को शुद्ध करते जाएं और हम then what else, brother? Walk in sincerity and walk being cleansed by the blood of Jesus. और हम अपने पूरे दिल से प्रभु के पीछे चलें और हम अपने सारे पापों से प्रभु के लहू से शुद्ध होते जाएं। We see that God is light, our God is love. और हमने देखा कि परमेश्वर जो है ज्योति है और वो प्रेम When भी है। when we when God's love comes into our heart, we will be loving others and we will be keeping his commandments. जब परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में प्रवेश करेगा तब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे और हम उनके जो वाचा है उसको रखेंगे और दूसरों से भी हम प्रेम करेंगे। God is life. God is eternal life. और परमेश्वर जो है वो जीवन देने वाला है, वो जीवन है और अनंत जीवन देने वाला है। And that is what we can see in 1 John chapter 5. और इसी बात को हम पहले यूहन्ना के 5वें अध्याय में देखेंगे। So in 1 John chapter 5, we saw that love of God and love to the brethren, love to one another is inseparable. तो हमने 5वें अध्याय में देखा कि जो परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम और भाई बहनों के प्रति जो प्रेम है वो अलग नहीं कर सकते हम। When God's love comes into our heart, we want to obey his commandments. जब परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में आता है तो हम चाहते हैं कि हम प्रभु के जो नियम है उसका पालन करें। And we also see that obedience to God is the result of faith in Jesus Christ. और हम ये भी देखते हैं कि परमेश्वर के नियमों का पालन करना वो ही परमेश्वर से प्रेम करना है। We saw that the mark of a person who is born of God is that he overcomes the world. और एक चिन्ह जो है, जो व्यक्ति विश्वास करता है उसका ये चिन्ह है कि वो इस संसार पर विजय पाता है। Everyone who is born of God has got the ability and capacity in them. God has given them the capacity to overcome the world. और जो भी विश्वास करता है उनको परमेश्वर जो है जय पाने का जो बल है वो प्रदान करता है। We also saw that it's by faith we overcome the world. और हमने ये भी देखा कि विश्वास के द्वारा हम इस संसार पर जय प्राप्त करते हैं। After that, we saw from verse 6 onwards that this is the one who came by water, blood, that is Jesus Christ. Not only by water, but also by water and with blood. और फिर हमने 6वें वचन में देखा कि यीशु मसीह वह व्यक्ति है जो पानी और लहू के द्वारा आया।
And we saw verse 7, it is a spirit that bears witness because the spirit is the truth. और 7वें वचन में हमने देखा कि जो पवित्र आत्मा है वो गवाही देता है क्योंकि आत्मा सत्य है. So in verse 8, we see that there are three that bears witness, the spirit, the water, and the blood. And these three are in और agreement. 8वें वचन में हम देखते हैं कि गवाही देने वाले तीन हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं. So what is the meaning of the three that bears witness, water and the blood and the spirit? और इसका मतलब क्या हुआ कि गवाही देने वाले तीन हैं, आत्मा, पानी और लहू. We know the witness of the Holy Spirit, as is written in Romans 8. Holy Spirit witnesses in our heart that we are the children of God. और पवित्र आत्मा की जो गवाही है उसके बारे में हम जानते हैं क्योंकि रोमियो 8 में लिखा गया है कि पवित्र आत्मा साक्षी देता है कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं. So what is the meaning of the witness of the water? तो पानी का गवाही का मतलब क्या है? It is referring to the time when Jesus took water baptism. तो उस समय को दर्शाता है जब यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया. When Jesus was baptized in water by John the Baptist, there was the witness of the Father from heaven. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया यूहन्ना के द्वारा, तब पिता ने साक्षी दिया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है. And there was also the witness of the Holy Spirit, by Holy Spirit coming as a dove and descending upon him and filling Jesus with the Holy Spirit. और उसी समय पवित्र आत्मा के द्वारा भी गवाही दी गई क्योंकि वो एक कबूतर के रूप में उन पर उतरा और साक्षी दिया. There are other instances also when there was a voice from heaven that this is my beloved Son, in whom I am well pleased. और ऐसे कई और घटनाएं घटी जब ऐसे बताया गया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है. वो स्वर्ग से आवाज आई. So what is the witness of the blood? और लहू का गवाही क्या है? It is referring to the time when Jesus died on the cross. और ये उस बात को दर्शाता है जब यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए. So when Jesus died on the cross, there were some supernatural events that took place. जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए तो कुछ ऐसे जो है चमत्कार या कुछ जो स्वाभाविक रूप में नहीं होती है, ऐसी बातें दिखाई गई. At the noon time from 12 to 3 p.m. there was darkness. और दोपहर के समय जब अंधेरा नहीं होता है तब 12 से 3 बजे तक अंधेरा छा गया. Veil was torn into two from top to bottom. और जो मंदिर में जो पर्दा था वो ऊपर से नीचे से ऊपर तक वो फट गया. See, from bottom to top, man can tear it. But when it is torn from top to bottom, the veil that separates most holy place from the holy place, it was torn from top to bottom, that God only can do it. और जो नीचे से ऊपर तक जो पर्दा फटता है वो मनुष्य कर सकता है, लेकिन जब वो ऊपर से नीचे तक वो फाड़ दिया गया, और जो पर्दा पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान के बीच में है, तो वो एक चमत्कार था. And by that, it was indicated that every born again person can go into the immediate presence of God. और इससे ये दर्शाया गया कि हर एक व्यक्ति जो नया जन्म पाया है वो परमेश्वर के उपस्थिति में प्रवेश कर सकता है. There was also an earthquake. और एक भूकंप भी हुआ उस समय.
tombs were opened and saints of old appeared to many people. और कब्र खोले गए और जो पुराने जो संत थे वो लोगों के बीच में वो दिखे. Now, when we read this portion in New King James Version, something is added there. जब हम इस भाग को जो किंग जेम्स वर्जन है उसमें पढ़ते हैं तो उसमें और भी कुछ बातें लिखी गई है. If you read 1 John chapter 5 verse 7 in King James Version, it's written, there are three that bears witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit. And these three are one. और वहां ये बताया गया है कि जो गवाही देता है वो पिता है, द Father, Son, and the Holy Spirit. बेटा और पुत्र और पवित्र आत्मा. So this is the witness from heaven. तो ये जो है गवाही स्वर्ग से दी गई है. We see the Father's witness. We already saw that in Matthew 3:17, where the Father said, "This is my beloved Son, in whom I'm well pleased." और हमने मत्ती 3:17 में देखा कि पिता ने साक्षी दिया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ. There are other places also the Father bears witness. John chapter 12 verse 28. और भी ऐसे जगह हैं जहाँ पिता जो साक्षी देता है और वो है यूहन्ना का 12:28. 12 अध्याय और उसका 28वां वचन. It's written there, there was a voice from heaven. I have glorified it and will glorify it again. That is glorifying God's name. और वहां ऐसे लिखा है यूहन्ना के 12 के 28 में, हे पिता अपने नाम की महिमा कर, तब यह आकाश वाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा. There was also the Father's witness in the Mount of Transfiguration. और जब फिर से जो पिता का जो साक्षी दी गई वो है जब वो उस पहाड़ पर उनके स्वरूप का परिवर्तन हुआ. There in Matthew 17:5 we read the Father telling, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased." और वो हम देख सकते हैं मत्ती के 17वें अध्याय के 5वें वचन में पिता कहता है कि ये मेरा 17 verse 5. Matthew 17:5. मत्ती 17 का 5, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो. And then the witness of the Son, Jesus Christ. और फिर जो है पुत्र का जो साक्षी. We read that in many places. One is in John 8:58, where Jesus said, "Before Abraham was born, I am." और यीशु मसीह जो हैं वो खुद साक्षी देते हैं. और यूहन्ना 8 के 58 में यीशु मसीह कहते हैं कि यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ. John 10:30, it is written, "I," that is Jesus Christ, "and the Father are one." और फिर यूहन्ना के 10वें अध्याय का 30वां वचन में यीशु मसीह कहते हैं, मैं और पिता एक हैं. John 6:35, "I am the bread of life." और यूहन्ना 6 के 35 में यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ. Like that, there are many other statements. "I am the good shepherd, I am the light of the world, I am the door, I am resurrection and life."
I am the way, truth, and life. There are so many witnesses of Jesus Christ. तो इस प्रकार से यीशु मसीह ने खुद के बारे में बहुत साक्षी दिए, जैसे कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ और मैं ही पुनरुत्थान हूँ, और ऐसे बहुत सारे जो है मैं ही जीवन मार्ग और सत्य हूँ, ऐसे बहुत सारे साक्षी प्रभु ने अपने बारे में दिए। And the witness of the Holy Spirit, we already saw Holy Spirit coming down in the form of dove upon Jesus, anointing him. और फिर हमने पवित्र आत्मा की साक्षी देखी, जहां वो एक कबूतर के रूप में यीशु मसीह के ऊपर उतरते हैं। In John 15, verse 26, is written, when the Helper comes, whom I have sent to you from the Father, that is the Spirit of truth, who proceeds from the Father, he will bear witness of me. और फिर जो है यूहन्ना 15:26 में, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। John 16:14, he shall, that is, Holy Spirit will glorify Jesus, and Holy Spirit will take up mine and shall disclose it to you. और यूहन्ना 16:14, वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। तो इसका मतलब कि पवित्र आत्मा महिमा देगा और वो यीशु मसीह के बातों में से लेकर लोगों को बताएगा। So we can see there the witness of the Father, Son, and the Holy Spirit. तो यहाँ हम उन तीनों के जो है गवाही को देख सकते हैं, वो जो है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। So we saw already the witness of the water, blood, and the Spirit. और पहले हमने जो है पानी, लहू और Water, blood, and the Spirit. और पवित्र आत्मा का जो साक्षी है उसके बारे में देखा। There is a symbol of that in the Old Testament. और इसका भी एक चिन्ह जो है पुराने नियम में दिया गया है। A priest, when he was ordained he is ordained by sacrificial blood, cleansing of water, and by oil. तो जब एक याजक नियमित किया जाता था, तब वो जो है लहू से और पानी से और तेल से वो अभिषेक किया जाता था। Oil is a picture of the Holy Spirit. और तेल जो है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। See, there is also these three things, there is water, blood, and the Holy Spirit. We can also look at it from our point of view. और हमारी तरफ से भी हम सोच सकते हैं कि इन तीनों को कैसे हमारे ऊपर लागू हो सकता है। For example, blood is a picture of forgiveness of sin. लहू जो है वो हमारे पापों की क्षमा को दर्शाता है। Water is a picture of water baptism. और पानी जो है पानी की बपतिस्मा को दर्शाता है। And Spirit is a picture of being baptized in the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा जो है पवित्र आत्मा की बपतिस्मा को दर्शाता है। See, when we look into the Acts of the Apostles, these are the three things we see the apostles emphasizing. और जब हम प्रेरितों के पुस्तक को पढ़ेंगे, तब हम देख सकते हैं कि जो प्रेरित हैं उन्होंने इन्हीं बातों पर जोर दिया। For example, when Peter was speaking on the day of Pentecost, और उदाहरण के लिए जब पतरस जो है पेंटेकोस्ट के दिन में जब प्रचार कर रहे थे, in Acts 2:38 we read, और
प्रेरितों का दूसरा अध्याय और उसके 38 वचन में हम पढ़ सकते हैं, Peter said, repent and let each of you be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of sin, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। So there we see the three witnesses. That is, we can see the need for repentance, for forgiveness of sin, the need for water baptism, and being baptized in the Holy Spirit. तो यहाँ हम उन तीन गवाह को देख सकते हैं, जहाँ मन फिराने के बारे में कहा गया है, जिसके कारण हमें पाप क्षमा मिलती है, और फिर पानी की बपतिस्मा और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा। Today also, when we talk to different people, these are the three things that we have to make sure that they are genuinely repented, born again, they have received forgiveness of sin, they have taken immersion baptism, adult baptism, and that they are filled with the Holy Spirit. और जब भी हम लोगों से बातचीत करते हैं तो हमें भी यह देखना चाहिए कि उन्होंने सच्ची रूप से मन फिराया है, पापों की क्षमा के लिए, और पानी का बपतिस्मा लिया है, और पवित्र आत्मा से वो भरे गए हैं या नहीं। See, all these three are an indication of our release and our freedom from being freed from sin in our life. तो यही तीन बातें हैं जो ये दर्शाता है कि हमें अपने पापों से मुक्ति या स्वतंत्रता मिल चुकी है। So we read in Revelations 1:5. हम प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और उसके 5वें वचन में पढ़ सकते हैं। The last portion is written, He released us from our sin by His blood. और आखिरी भाग में, 5वें वचन के आखिरी भाग में ऐसे लिखा है, और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। Another verse that shows the power of the blood of Jesus Christ is Hebrews chapter 9, verse 14. और दूसरा एक वचन जो लहू का जो शक्ति है दर्शाने वाला वचन, वो इब्रानियों का 9वां अध्याय और 14 वचन। How much more the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God. तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करें। So, by the blood of Christ, we are not only cleansed from sin, we are also freed from the dead works. और ये वचन हमें समझाता है कि हमें पापों से क्षमा या मुक्ति मिलती है, और उसके साथ साथ हमें अपने मरे हुए कामों से भी हम शुद्ध किए गए हैं। 1 Peter 3:21, we read of water baptism. और पहला पत्रस 3:21. तीसरा अध्याय और उसके 21वें वचन में हम जो है पानी के बपतिस्मा के बारे में पढ़ते हैं। Corresponding to that, baptism now saves you, not the removal of dirt from the flesh, but the appeal to God for a good conscience through the resurrection of Jesus Christ. पहला पत्रस 3 का 21, उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। So when we take baptism, it is not just to going under the water to remove the dirt from our body. तो जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो ये नहीं दर्शाया जाता है कि हमारे शरीर का जो मैल है वो धो दिया गया है,
what we are telling the Lord is, Lord, I will keep a good conscience always in my life. लेकिन हम परमेश्वर से ऐसा कह रहे हैं कि मैं हमेशा एक शुद्ध विवेक रखूंगा आपके सामने. And about the Holy Spirit, we read in Romans 8:2, the law of the Spirit of life in Christ Jesus has freed us from the law of sin and death. और पवित्र आत्मा के बारे में हम जो है रोमियो 8 का दूसरा वचन में पढ़ते हैं कि क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है. Now we can come back to 1 John chapter 5. और अभी हम वापस पहला यूहन्ना के 5वें अध्याय में वापस चलते हैं. Verse 9. और 9वां वचन, If we receive the witness of men, the witness of God is greater. For the witness of God is this, that he has borne witness concerning his son. जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है. और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है. See, how many times we are believing so many people. अगर हम सोचकर देखेंगे तो हम जान पाएंगे कि कितने बार हम लोगों पर विश्वास करते रहते हैं. For example, when we are accepting from the bank 500 rupee note, in that note it is written by RBI governor that I promise to pay the bearer the sum of rupees 500. So we are believing that witness that it has got that value. तो जब हम एक बैंक में जाते हैं उदाहरण के लिए और वहां से 500 रुपए का नोट स्वीकारते हैं तो उस नोट पर ऐसे लिखा गया है, जो रिजर्व बैंक का जो गवर्नर है उनके द्वारा साक्षी दी जाती है कि मैं जिस व्यक्ति को ये पैसा मिलता है वो 500 रुपए का नोट मैं अदा करता हूं. और हम उस बात पर पूरी तरह विश्वास करते हैं. In the same way, many of you may be sitting under a fan, ceiling fan. You're believing that person who has fitted that fan, that it won't fall on you, all on your head. और हम में से कई जो हैं एक जो फैन के नीचे बैठे होंगे और हम ने उस व्यक्ति पर जिसने उस फैन को उस जगह पे लगाया है, हम कितना उस पर विश्वास करते हैं कि वो हमारे सर के ऊपर आकर नहीं गिरेगा. So like that, we are witnessing so many hundreds of people every day. तो इस प्रकार से हम कितने लोगों पर एक दिन में विश्वास कर रहे हैं. So this verse says that if we are receiving the witness of men, witness of God is so great. The witness God has borne concerning his son. तो इसीलिए इस वचन में कहा गया है कि जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर ने जिन्होंने अपने पुत्र के बारे में गवाही दी है उसमें कितना और बढ़कर हमें विश्वास करना चाहिए. And verse 10, the one who believes in the Son of God has this witness in himself. The one who does not believe God has made him a liar, because he has not believed in the witness that God has borne concerning his son. और 10वां वचन, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है. जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है. So when Bible tells of believing in the Son of God, जब वचन में कहा गया है कि हम जो है पुत्र पर विश्वास करें, see, what is the reason for all these witnesses from earth, witnesses from heaven? It's all that we can believe in Jesus Christ. तो ये सब जो गवाही दी गई है स्वर्ग में और पृथ्वी पर, तो ये क्यों दिए गए हैं? ये इसीलिए दिए गए हैं कि हम पूरे मन से जो है विश्वास करें यीशु मसीह पर. See, please remember,
when we say a believe, we are not telling just to have some intellectual belief. तो हम अपने मस्तिष्क से विश्वास करने के बारे में हम नहीं कह रहे हैं. Please remember, faith or belief has got three parts. और हम याद रखें कि तीन रास्ते हैं विश्वास के. First of all, faith means perception of the truth or to understand the truth. और पहली बात ये है कि हम सत्य को पूरी तरह समझ लें. See, that is the first part. Second वो is पहला भाग. to have an interest in it. और दूसरा है कि उसमें दिलचस्पी रखना. And third is a voluntary commitment of our will and our mind to be controlled by the truth. और तीसरी बात ये है कि हम अपने आप को पूरी तरह समर्पण करते हैं कि हम अपने खुद की इच्छा से उस पर हम विश्वास करते हैं. To make this clear, I'll give you a very simple example. और इसको समझाने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ. Imagine you have got a terminal disease. और आप सोचिए कि आपको एक ऐसा बीमारी पकड़ी है जिससे आपकी मृत्यु हो सकती है. But you know of a doctor who has healed thousands of patients with the same disease. लेकिन आप ऐसे एक डॉक्टर को जानते हैं जिन्होंने इस प्रकार के जो बीमारी से लोगों को चंगा किया है. So just that understanding will not help you. That is the perception of truth. That will not help you. तो उस समझ से कि वो मुझे चंगाई दे सकता है, उससे हम जो है उस बीमारी से चंगाई नहीं पा सकते. Imagine you went and met that doctor, and you are interested in that doctor and his knowledge and his treatment and all those things. That also will not help you. अगर आप उस डॉक्टर के पास जाते हैं और उनके बातों में रुचि रखते हैं और उनसे मिलते हैं और जो वो बातें कहते हैं उसका ज्ञान आप प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उससे भी आपको चंगाई प्राप्त नहीं होगी. These two are necessary, but they are not enough for you to be healed. ये दोनों बातें जरूरी है, लेकिन इससे आपको चंगाई नहीं मिलेगी. But the third thing is also very, very important. तीसरी बात जो है बहुत महत्वपूर्ण है. You have to voluntarily commit your will and your mind to be controlled by the doctor. That means you have to surrender yourself to that doctor. Whatever the doctor says, I'll obey. I'll do it. Then you can be healed. तो हमें अपने स्व इच्छा से ही अपने मन को और अपनी इच्छा को पूरी तरह उस डॉक्टर के हाथों में समर्पण करना पड़ेगा कि जो भी वो कहता है उसको मानने के लिए हम तैयार हो जाएं. So the reason why all these witnesses are there, Father, Son, and the Holy Spirit, the witness at the time of baptism, at the time of Jesus' death, all is for that we can commit our life totally, surrender our life totally, voluntarily submit our life totally to Him. तो ये जो गवाही दे रहे हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, और पानी के बपतिस्मा लेने के समय और लहू, ये सब इसीलिए गवाही दे रहे हैं कि हम अपने स्व इच्छा से ही पूरी तरह अपने आप को समर्पित कर सकें. But if we don't do like that, if we don't commit ourselves, surrender ourselves totally to Him, first tense is we are making Him a liar. लेकिन अगर हम इस प्रकार से पूरी तरह अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे, तो जिस प्रकार से 10वां वचन कहता है कि हम परमेश्वर को झूठा स्थापित कर रहे हैं. We have to remember that many times we don't understand this, that unbelief is a terrible sin. कई बार ऐसा होता है कि हम समझ नहीं पाते कि अविश्वास जो है एक बहुत ही गंभीर पाप है. We read in Hebrews 3:12, take care, brethren, lest there should be in any of you an evil, unbelieving heart in falling away from the living God.
और इसके बारे में हम इब्रानियों का 3 अध्याय और उसके 12वें वचन में पढ़ते हैं कि हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। Just think of that phrase, falling away from the living God. तो इस वचन के बारे में, वाक्य के बारे में आप सोचे कि जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। In other words, when we have got unbelief, the life will not flow to us anymore. तो इसका Life of मतलब God. ये है कि जब हम अविश्वासी बन जाते हैं तो परमेश्वर का जो जीवन है वो हमारे अंदर नहीं बहेगा, नहीं, हमारे जीवन में नहीं होगा। See, it's not written of unbelievers. It is written of born again believers who are not having faith in the Lord, not having that living faith in the Lord. तो ये जो बात कही गई है ये अविश्वासियों के बारे में नहीं कही कही गई है, ये विश्वासी जिन्होंने मन फिराया है लेकिन अभी जो है वो विश्वास नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों के बारे में कहा गया है। It's like you can see in a tree, a leaf which was green is slowly becoming yellowish. That means the life has stopped flowing to that leaf. It's only a matter of time before it falls off. और ये एक उदाहरण के रूप में हम ऐसा सोच सकते हैं कि जैसे एक पेड़ में हम एक पत्ता देखते हैं जो धीरे धीरे वो मुरझाने लगा है, वो पीला होता जाता है उसका रंग, और एक ऐसा दिन आएगा जब वो पूरी तरह सूख कर नीचे गिर जाता है, That's why अलग faith हो is जाता है। that's why faith is very, very important. तो इसीलिए विश्वास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। And we read in verse 11, the witness is this, that God has given us eternal life, and the life is in his Son. और 11वां वचन, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। See, John is coming to the most important part in this verse. और इस वचन में जो सबसे महत्वपूर्ण या सबसे जो गंभीर बात है उस पर वो अभी आ पहुंचे हैं। The reason why all these witnesses are there is that we can believe, and the reason why believe is that we can have eternal life. और वो ये कहना चाहते हैं कि ये सब गवाहियां इसीलिए दी गई है कि हम विश्वास करें, और विश्वास करने से ही ये जो जीवन है जो पुत्र में है वो हम में भी पाया जाएगा। What is eternal life? और अनंत जीवन क्या है? In John 17:3, we read, this is eternal life, that you may know the Father and know Jesus Christ. That's to be intimate with God the Father and to be intimate with Jesus Christ. और जिस प्रकार से यूहन्ना 17:3 में बताया गया है कि और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। तो पिता और पुत्र के साथ जो हमारा एक घनिष्ठ संबंध है वो बनाए रखने से ही हमारे अंदर वो जीवन बहता है। Yeah, it should be a desire, my dear brothers and sisters, a passion to know Jesus and know God the Father more and more and more. That's why the Holy Spirit has come to reveal the Father and reveal Jesus Christ. तो यही हम सबकी प्यास और भूख या इच्छा होनी चाहिए कि हम पुत्र को और पिता परमेश्वर को जान पाएं, क्योंकि उन्हीं में जीवन है। Another word for eternal life is divine nature. और एक दूसरा जो शब्द जो अनंत जीवन का पर्यायवाची है वो है परमेश्वर के स्वरूप में बन जाना। See, when we are born again, what really happens is it's a miracle of a transformation from being like a
pig who loves dirt to becoming like a cat who hates dirt. That is, in our heart, God gives us that hatred towards sin. जब हम मन फिराकर यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, तब हमारे जीवन में एक चमत्कार होता है जिसके कारण हमारे अंदर ऐसा परिवर्तन होता है कि हम एक सुअर जो गंदगी को चाहता है, उसमें से बदलकर एक बिल्ली के समान जो गंदगी से दूर रहता है, ऐसा एक हमारे अंदर जो हमारे हृदय में ऐसा परिवर्तन हो जाता है। Just like God hates sin, we also begin to hate sin. जिस प्रकार परमेश्वर जो है पाप से घृणा करते हैं, उसी प्रकार हम भी घृणा करने लगते हैं। And that divine nature, eternal life, is to increase in our life as we go walking with Jesus Christ. और वो जो परमेश्वर का जो जीवन है, वो हमारे अंदर बढ़ता जाता है और यीशु मसीह के समान हम बनते जाते हैं। See, when divine nature comes, see, it's not an effort to live this Christian life. जब वो स्वभाव हमारे अंदर आ जाता है, तो हमारे लिए ये जो ख्रिस्ती जीवन जीना वो एक परिश्रम या कठिनाई की बात नहीं रह जाती। There are migratory birds which are coming from far off Siberia, etc., to India and many other countries. तो ऐसे बहुत सारे पक्षियां हैं जो रशिया और ऐसे ठंडी जगहों में से उड़कर वो इंडिया जैसे देशों में जहां गर्मी होती है, वहां तक वो उड़कर आते हैं। I heard of a migratory bird called Arctic tern, which is the bird which is traveling the longest distance by migration. It travels 90,000 kilometers. तो मैंने एक ऐसे चिड़िया या पक्षी के बारे में सुना जो बहुत दूर जो 90,000 किलोमीटर उड़कर, उसका नाम है आर्कटिक टर्न। वो इतना दूर उड़कर वो आता है। It is traveling every year from Arctic to Antarctic. तो वो हर वर्ष जो है आर्कटिक से अंटार्कटिक तक वो उड़ता है। So just imagine you ask that bird, are you tired by the time you reach Antarctic? It say, no, I'm not tired at all. तो अगर हम उस पक्षी से पूछेंगे क्या तुम थक गए हो इस उड़ान के कारण, तो वो कहेगा कि नहीं, मैं नहीं थका। Because that's my nature. क्योंकि वो उसका स्वभाव है। So that is what God wants to do in our life also. तो यही बात जो है परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है। Imagine you find in the road 100 rupee note. Will you just take it and pocket it in your... No, I don't think none of us will do that. अगर हम में से किसी ने 100 रुपए का नोट रोड पर पड़ा हुआ देखा, तो क्या हम में से कोई भी उसे उठाकर अपने पॉकेट में डालेगा? मैं नहीं विश्वास करता कि हम में से कोई भी ऐसा करेगा। I don't think we are even tempted to do that. और हमें इस रीति से हम परीक्षा में भी नहीं पढ़ते। Because that nature of God has come into us. क्योंकि वो ईश्वरीय स्वभाव हम में आ गई है। And we read in verse 12, he who has the Son has life, and he who does not have the Son does not have life. और 12वां वचन, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। Please remember, when you have the Son inside you, you have got the life of God inside you. तो हम इस बात को याद रखें कि जब पुत्र हमारे अंदर है, तब जो है परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर है। His nature is there inside you.
उनका जो ईश्वरीय स्वभाव है वो हमारे अंदर है, and all of God's wealth is yours. और परमेश्वर का धन जो है, सारा धन वो हमारे अंदर है। I'll tell you a story and finish it. मैं एक कहानी बताता हूँ और खत्म करूंगा। This is the story of a famous artist, and he was teaching his son, who was around 17 years old, how to draw wonderful pictures. एक चित्रकार था और वो अपने बेटे को जो 17 साल का था, उसे किस प्रकार से सुंदर चित्र रचना चाहिए उसके बारे में वो उसे सिखा रहा था। And this son had another friend, and every day that friend comes to his home, and he was teaching him how to draw nice pictures. और ये जो चित्रकार का बेटा है, उसका एक दोस्त घर में आता था रोज, तो वो उसे भी सिखाता था कि किस प्रकार से इस चित्र को बनाना चाहिए। So they were very, very fast friends, and some years went by, and there was a war. और ये दोनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे, और कुछ सालों के बाद एक युद्ध में युद्ध हुआ, And even the young people were called into the battlefront. और जो जवान लोग थे वो भी, उन्हें युद्ध के क्षेत्र में जाना पड़ा। So this artist son and his friend had to go to the battleground. वो जो चित्रकार का बेटा और उसका मित्र, दोनों को ही उस युद्ध के क्षेत्र में जाना पड़ा। And in the battleground, they had quite a lot of leisure time, and the artist son was teaching the other boy many techniques of drawing, painting, etc. और ये जो चित्रकार का जो बेटा था, उससे और उसके दोस्त को बहुत ऐसे आराम का समय मिला जब वो उसे सिखाता था कि किस प्रकार से कई अलग अलग तरीके से कैसे चित्र बनाना है और पेंटिंग करना है। One day, this artist son's friend was drawing the picture of the artist son. और ये जो चित्रकार का बेटा है वो अ, अपना ही एक चित्र बना रहा था। Artist son's friend was drawing the picture of artist son. तो वो जो आर्टिस्ट जो चित्रकार है, उस के बेटे का जो मित्र है, वो इस बेटे का चित्र बना रहा था। While he was concentrating on that, a bullet from the enemy was coming directly at him. और जब वो उस पर ध्यान से लगा रहा था, तब उस पर वो जो है शत्रु के तरफ से एक बुलेट आया और उसको लगा। And the artist son saw that, and in order to save him, he stood in front of him. He took that bullet on him. और जो चित्रकार का पुत्र था, जब उस बुलेट को आते देखा, तो उस अपने मित्र को बचाने के लिए वो उस बुलेट के सामने जाकर खड़ा हो गया। And he was terribly bleeding, and there was no hospital nearby. And after some time, he died. और वो लहू से लथपथ हो गया, और पास में कोई हॉस्पिटल नहीं था, इसीलिए वो गुजर गया। This was had a terrible impact on the other boy's heart and life. और इस बात के कारण उस जो मित्र है उसके ऊपर एक बहुत ही गहरा जो है चोट लगा। After many years, the battle got over, and the son went to see the artist, his friend's और father. तो उसके बाद ये जो मित्र है वो अपने कई सालों के बाद जब युद्ध खत्म हुआ, तब वो जो मित्र है वो उस अपने जो चित्रकार का बेटा के पिता के पास वो उससे मिलने And गया। and he presented this picture which he drew of
his friend, his father's son, to him. और उसने उस चित्रकार के पुत्र का जो चित्र उसने बनाया था वो उसने उस चित्रकार को दिया। It was not a professional picture, just an amateur picture. वो इतना सिद्ध प्रकार से बनाया गया चित्र नहीं था। And he put it in his gallery. और उस चित्रकार ने उसे अपने गैलरी में लगाया। After many years, that artist died, और कई सालों के बाद वो चित्रकार भी गुजर गया। and all his artistic work are going to be auctioned. और उसके सारे जो चित्र उसने जो बनाए थे वो सब ऑक्शन में जा रहा था। So people from all over the world, Australia, Canada, Brazil, Argentina, all these different parts of the world came to this auditorium for this auction. और इस ऑक्शन में भाग लेने के लिए सारी दुनिया से लोग आए थे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और सब जो अन्य देश हैं उनमें से लोग उधर आए। So the person who is conducting the auction, you know how he started? He presented this picture, this artist's son's friend has drawn of the artist's son, and said, "This is the picture we want to auction now. Who wants it?" और जिस व्यक्ति ने इस ऑक्शन का आयोजन किया था उसने जो है सबसे पहले जो चित्र इस चित्रकार के बेटे के मित्र ने बनाया था उसको पहले ऑक्शन करने का निर्णय लिया। Just an amateur picture. और वो एक साधारण सा चित्र था। And people began to say, "We are not come for this picture. That's just an ordinary picture. Just get it away. We want to have the real pictures auctioned." और लोग कहने लगे कि हम इस चित्र को खरीदने नहीं आए हैं, हमें तो और सब जो अच्छी तरह बनाए गए हैं उसी चित्र को खरीदने हम आए हैं। He said, "This is the first picture to be auctioned." तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये ही चित्र जो है पहला जिसका ऑक्शन किया जाएगा। And nobody wanted it. और कोई भी उसे खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ। But that person who drew that picture, that artist's friend, was sitting at the back. और जिसने उस चित्र को बनाया था, जो वो उस चित्रकार के बेटे का मित्र था, वो पीछे बैठा हुआ था। He said, "This picture, the value of this picture, I know. The value of this person, I know, because he is the one who saved my life." तो उसने कहा कि मैं इस चित्र का जो कीमत है मैं जानता हूं क्योंकि इसी व्यक्ति ने मेरे जीवन की रक्षा की है। He said, "I'll give up everything. I want that picture." He went forward and took that picture. और उसने कहा कि मैं अपना जीवन देने को तैयार हूं, मैं अपना सब कुछ देने को तैयार हूं। और वो आगे जाकर उसने उस चित्र को ले लिया। As soon as that picture was handed over to him, the auctioneer said, "Now the auction is over." और जैसे उस जो आयोजन करने वाला व्यक्ति ने वो चित्र उस मित्र के हाथ में दिया, तब उसने कहा कि अब ये ऑक्शन खत्म हो गया। Everybody began to say, "Auction has not even started. What do you mean? Auction has ended." तो सब लोगों ने उनसे पूछा, ये क्या कह रहे हो आप कि ऑक्शन खत्म हुआ है? अभी तो ऑक्शन शुरू भी नहीं हुआ है। So he read out the will of the artist. तो जो आयोजन करने वाला है उसने उस चित्रकार का जो विल है उसको उसने पढ़ा। Who gets this picture of his son will have all the other pictures. तो उसमें उस चित्रकार ने लिखा था कि जो भी मेरे पुत्र का चित्र है उसे खरीदेगा उसे बाकी सब कुछ मिल जाएगा। So that is exactly what this verse says. तो यही बात जो है ये वचन दर्शाता है। He who has the Son has life, everything of God.
who does not have the Son have got nothing of real spiritual value. जैसे कि 12वें वचन में कहा गया है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। To have the Son means to live in that living contact relationship with Him all the time. तो पुत्र पास होने का मतलब है कि इस पुत्र के साथ हमारा बहुत ही घनिष्ठ संबंध हो। As Bible says, abide in Him. As a branch abides in a tree, we have to abide in Him. जिस प्रकार यूहन्ना के 15वें अध्याय में कहा गया है कि जिस प्रकार डाली जो है दाखलता में लगा रहता है, वैसे ही हमें लगा रहना जरूरी है।